LHL and RHL method. Okay, so we will take a question. For example, we have this function fx is equal to, suppose, x plus 1 when x is less than 1, and this is x square plus 1 when x is greater than equal to 1. We need to find the limit. We need to check that limit x tends to 1 fx exists or not. ठीक है, वो आपसे कह सकते हैं check whether this limit exists or not. So आपको करना कैसे, और वो आपसे कह सकता है कि find the value of this limit. So whenever you have an inequality, then you always need to find the LHL and RHL. So कैसे कह रहे हैं, LHL of fx at x is equal to 1. So LHL means we will approach this value 1 from the left side. So left side means less than 1. So Noma, आप बता सकते हैं कि for LHL what function we will choose? This one or this one? First or second? The second one. So LHL, for LHL. सेकेंड चूज करेंगे क्योंकि सर x greater than or equal to 1 है. Okay, okay. तो Okay, first of all, सर फर्स्ट भी कर सकते हैं सर, दोनों. तो फर्स्ट चूज करेंगे, सॉरी सर. Okay, okay, अभी हम check करते हैं. So for LHL we will always write like this: limit x tends to 1 minus fx. Okay, for LHL we will always write like this: limit x tends to 1 minus fx. 1 minus doesn't mean minus 1. Okay, 1 minus just represent that we are approaching this one from the left side. अब हम चेक करते हैं, suppose we have this one in place of 2 we have 1, तो हम क्या करेंगे, LHL means left side से approach कर रहे हैं. Left side means less than 1 value put कर रहे हैं. Okay, less than 1 but very very close to 1. Okay, so यहाँ हमें क्या मिलेगा, so when we will approach from LHL then we will choose this function because this is for x is less than 1. So we will use this function limit x tends to 1 minus x plus 1. Okay, number and number. सर आपने भी क्या एक और बार रिपीट कर दीजिएगा ये जी. When we are finding LHL we will write like this: 1 minus, and 1 minus means we are approaching from the left side. So left side से approach करने का मतलब less than 1. Okay, so this is a function for less than 1. So this will give you limit x tends to 1 minus x plus 1. Noma and Nabra, this clear? ओके Yes, sir. सर. Okay, so 1 minus means less than 1 but close to 1. Less than 1 का मतलब ये नहीं है that आप put करें -2, -10, -100, नहीं, very very close to 1 but less than 1. Okay, very very close to means for this one 0.999 and so on. So we will write like this. First of all, for LHL we need to write this 1 minus fx. We need to choose the function, then always let x is equal to 1 minus h. Always for LHL you need to write 1 minus h, and for RHL 1 plus h. वो हम फिर check करेंगे. And in the bracket please write when x approaches to 1 minus h approaches to 0. Okay, कैसे check कर रहे हैं, जब suppose आप यहाँ एक value put कर रहे हैं which is very close to 1, 1 and 1 will cancel out, h will be 0. So when this x will approach to 1, h will approach to 0. Always remember h will approach to 0. So what you will get this limit h tends to 0. Noma and Abra, this clear? यस सर. Yes, sir. Then आप solve कर सकते हैं, then solve it, और उसके बाद फिर limit put करना है आपको. So limit h tends to 0 and this will give you 1 plus 1 is 2, 2 minus h, put this limit. So you'll get 2 minus 0 which will give you 2. This correct, Noma and Abra? यस. Yes, sir. Okay, so this is LHL. LHL we get 2. Next we will find the RHL. RHL of fx at x is equal to 1. So क्या करना है, for RHL you need to write this limit. Okay, so for RHL you need to write this 1 plus. 1 plus means
From the right side we are approaching. Now, Namra, can you tell me which function we will choose for the RHL? Second one, x square plus. Second one, very good. Then for RHL, we will use let x is equal to 1 plus h. And in bracket, we will write when x approaches to 1 plus h to 0. Okay, so we get this RHL also to LHL is also 2. So we'll write LHL of fx at x is equal to 1 is equal to RHL of fx at x is equal to 1. So we get this. So this means, this implies limit x tends to 1 fx exists and limit x tends to 1 fx is equal to 2. Okay, again LHL and RHL exist karta hai, then we will say that limit will exist and the value of this limit is 2. Sir, LHL and RHL हमेशा same होंगे. If they are equal, then limit will exist. अगर equal नहीं है, then limit will not exist. Okay. Okay, Namra and Noma. Yes, sir. Yes. Okay, so please note down this. Last page note कर लिया था LHL. No, sir. Please note down this and confirm me. Then we will start some questions. Okay. Done. Okay, Noma, Namra, this completed. Namra, please Yes. confirm. Okay, please note down this. Written. Okay, Noma, this completed. One second, sir. Okay. Done, sir. Okay, then please try this.
Please try this question. सर आपने अभी क्लास में क्या क्या करा दिया? इस पर हमने बस सभी LHL RHL ही स्टार्ट किया. सो ओके, सो प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. इस पर एग्जाम कैसा हुआ? सर अच्छा. ओके, एनी क्वेश्चन जो नहीं हुआ? सर नहीं, एमसीक्यू बेस्ड था तो हो गया था. हो गए थे. ओके, वेरी गुड. सो स्पर्श अभी हम बस ये कंप्लीट करते हैं, देन वी विल चेक द डाउट्स. सर x इज ग्रेटर देन 3 में आपने ओनली 4 लिखा है. जी स्पर्श, दिस ओनली 4. सर इसमें LHL में कौन सा केस लेंगे? अच्छा, आप बताइए LHL में कौन सा लेना चाहिए? सर और हमें x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो फिर सर कोई सा भी ले सकते हैं. नहीं, हमें फाइंड क्या करना है? LHL फॉर 3, है ना? सो लेस देन 3 चाहिए होगा. सो लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? सर फर्स्ट वाला. सर बट डिसाइड कैसे नहीं करेंगे? नहीं, लेस देन 3 बच्चे यहाँ देखना है. यहाँ x इज लेस देन 3, सो LHL के लिए तो ये होना चाहिए यूज. सर डन. ओके ओके, स्पर्श अभी देखते हैं. नोमा, ये क्लियर नहीं हुआ अभी. LHL हाँ मीन्स सर. 3 से लेस, है ना? 3 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी लेस देन 3. तो लेस देन 3 कौन सा है? ये इसका मतलब क्या है? व्हेन x इज लेस देन 3, fx इज इक्वल टू दिस वन. व्हाट डज ओके दिस सर. कंप्लीट मीन? व्हेन x इज लेस देन 3, fx इज दिस. सो RHL के लिए कौन सा यूज करेंगे नोमा? सर RHL के लिए x इज ग्रेटर देन 3. वेरी गुड. ओके, प्लीज ट्राई दिस एंड फिर हम चेक करते हैं. स्पर्श, व्हाट इज द आंसर? सर एग्जिस्ट. Okay, and what is the value of limit? सर 4. Very good, that's 4. Number and Noma, please complete it and share your answer. सर मुझे 3.1 में 3 क्वेश्चन का डाउट था. Okay, इस पर अभी डिस्कस करते हैं इसको. ओके सर. Number and Noma, if you have any doubt, then let me know. Or complete okay, then share your answer. सर इसमें लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h करना जरूरी है? नहीं, 1 minus h हम नहीं करेंगे. हम फाइंड किसके लिए कर रहे हैं? LHL at x is LHL of fx at x is equal to 3. तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x tends to 3 minus fx and fx हमने चूज किया 3. अब हम यहाँ लेट करेंगे नोमा x इज इक्वल टू 3 माइनस h. ओके, यहाँ जो भी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं. इज सर क्लियर? बट डायरेक्ट भी तो रख सकते हैं, क्योंकि सर 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा. हम क्या पुट कर सकते हैं? सर 3 डायरेक्टली x में पुट कर सकते हैं.
कर सकते हैं बच्चे, बट इन सम स्कूल्स टीचर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ओके, सो दिस इज द बेस्ट मेथड. ओके, Okay, sir. and Namra, if this is completed, then please share your answer. फोर. जी Namra, what is the answer? यस सर. सर जैसे जो फर्स्ट है 4, मतलब जी हमें जो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, जी तो हम उसमें वैल्यूज या कुछ करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि उसमें तो एक्स है ही नहीं. जी, ठीक है, हम बट लिखेंगे, हम कंप्लीट लिखेंगे, बट वी कांट पुट एनीथिंग इन दैट. ओके, ओके. ठीक है. okay. Noma, what's the Yes, answer? sir. हो गया sir. Exist Exists, and what's the value of limit? 4. Very good. Namra, same answer. यस सर, मैंने बताया था आपको पहले. Okay, okay, sorry, मैंने मिस कर दिया. Please try another question. Please try this question. So done. Okay, Does Spush not exist. does not exist. Spush, same answer. Yes, sir. Okay, so what is the LHL? So -1. Okay, 1. LHL is -1. 1 sir. 1. Okay, we'll check. And what is RHL? 7. Number, what is RHL? सर मेरा तो 0 आ रहा है. RHL -1 है और LHL 1 है. अच्छा, आपने अपोजिट तो नहीं किया? Let me check. नंबर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे फॉर LHL? X -1. X -1. We will let x is equal to 0 minus h. Yes sir. X tends to 0 minus h tends to 0.
this correct? Yes, sir. So this will give you limitation is to 0. In place of x, you will write 0 minus h minus 1. So you will put this. So 0 minus 1. This will give you minus 1. Okay, Namra? ओके सर, मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे. Okay, okay. And please correct now RHL. ठीक है, same mistake आपने RHL में किया है. Moma, what is LHL and RHL? Noma, what is LHL and RHL? जी सर सर 1 मिनट सर. Okay, then please complete this and share your answer. सर does not exist. Does not exist. Okay. Namra? यस सर, मैंने करेक्ट कर लिया उसे. Okay, Does what is RHL? 1. RHL is 1. Noma, you're also getting the same answer. RHL is 1. सर मेरे से 2 आ रहा है. अच्छा 2 आ रहा है. ठीक है, चेक करते हैं 2 क्यों आ रहा है. This equal to limit x tends to 0 plus. Noma, we will take a x plus x plus 1. then हम लेट क्या करेंगे. लेट x is equal to 1 plus x. बच्चे 1 क्यों आ रहा है आपका. सर यस सर 0 होगा सर. 0 हो गया. प्लीज करेक्टेड and tell me the final answer. यस सर 1 आ गया. 1 आ गया. Very good. Then please try next question. सर ये लैम्डा है, x माइनस लैम्डा. जी ये lambda है. Please try this. Find lambda if this limit exists. Okay, what does this mean by that this limit exists? It's mean LHL is equal to RHL. यस. है ना. In the question it is given that the limit exists. So this means LHL is equal to RHL. आपको क्या करना है. You need to find the LHL. You need to find the RHL. आपको equate करना है बस. Okay. Please try this and share your answer. सर हम पहले RHL कर सकते हैं. जी that's your choice. आप कर सकते हैं.
सर बता दीजिए कैसे होगा, RHL तो आ गया लेकिन फिर उसके बाद क्या करें? RHL कितना रहे आपका? 3। 3। RHL 3 कैसे हो सकता है? तो RHL मेरा माइनस लैम्डा आ रहा है। नहीं, माइनस लैम्डा भी ठीक नहीं है। सर आंसर -1 है। आंसर इज -1। वेरी गुड। RHL आपने ठीक नहीं फाइंड किया। RHL 2 माइनस लैम्डा आएगा। प्लीज अगेन चेक योर कैलकुलेशन। ठीक है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ बट आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा और इसमें तो 2 कोशिश करें। माइनस लैम्डा क्यों होगा? 2 तो माइनस 2 लैम्डा। प्लस होना चाहिए ना। We will check RHL of fx at x is equal to 2. So this will give you limit x tends to 2 plus नोमा लेट क्या करेंगे? x is equal to what? 2 प्लस लैम्डा। X is equal to 2 plus 2 प्लस h. h। Okay, in bracket write when x tends to 2 plus okay, Nambra, Noma, this clear? यस सर। कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? सर मैं 2 लिखना भूल गई थी। Nambra, this clear? सर LHL 3 आ सर रही है बट ना। मैं ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि हम RHL और LHL ले कैसे रहे हैं? हम ले कैसे रहे? First of all, you need to write like this: RHL of fx at x is equal to x tends to 2 plus fx. Then you need to decide that which function we need to check. We need to take. नम्रा, इन दोनों में से for RHL ये क्लियर है हम कौन सा फंक्शन चूज करते हैं? ये क्लियर नहीं पर है? मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि फंक्शन कौन सा चूज करना है। 2 प्लस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2? ग्रेटर देन 2। This is the value. यहाँ है x is less than equal to 2 and this is x is greater than 2. So greater than 2 के लिए कौन सा वैल्यू करेक्ट है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड। अब क्लियर हुआ? यस। LHL के लिए कौन सा वैल्यू करेक्ट है? फर्स्ट वन 4x - 5। ओके, अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके, प्लीज कंप्लीट दिस एंड शेयर योर आंसर। हो गया सर। ओके, नोमा कितनी आ रही है वैल्यू? -1। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नम्रा, प्लीज कंप्लीट दिस एंड शेयर योर आंसर। नम्रा, कंप्लीट हो गया है? यस सर। व्हाट्स आंसर? -1। -1. Very good. Then please try this question. Please try this. And if okay, please try this question.
सर यहाँ तो 3 फंक्शन दे रखे हैं, बट सर लिमिट की तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती है, RHL और LHL। ये बच्चे LHL के लिए आप कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? लेस देन 1, ओके, वेरी गुड। RHL के लिए? ग्रेटर देन। वेरी गुड। नाउ यू नीड टू फाइंड दिस F1। ठीक है, ये भी फाइंड करना है। तो F1 के लिए क्या होना चाहिए वैल्यू? ओके, 4। F1 की वैल्यू 4 होनी चाहिए। वेरी गुड। ओके सर। ओके, गुड। सर LHL RHL फाइंड आउट करने के बाद क्या करें? LHL बच्चे कितना रहे आपका? A plus B, A plus B। ओके, व्हाट इज RHL? B minus A. ओके, उसने की ओके स्पर्श, व्हाट्स आंसर स्पर्श? Sir, A is equal to 0 and B is equal to 4. P is equal to 4. Very good, Sparsh. This is correct. So, number they are saying that limit is equal to this. It's mean limit exists कर रहे हैं, है ना? Limit exists का मतलब LHL is equal to RHL. वो आपने यहाँ put कर दिया. So LHL is equal to RHL and this should be equal to F1. ये clear हुआ number? ऐसा क्यों होगा? Yes sir, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. So it's mean A plus B is equal to 4. This is 4, है ना? And B minus A is equal to 4. इसको हम ऐसे करते हैं, A plus B is equal to B minus A is equal to 4. This is correct? Yes sir. Okay, so now please complete this question and share your answer. सर आपने क्या किया, फिर से बता दीजिए। Noma, this is given A plus B is equal to B minus A is equal to F1. ये clear हो गया? ऐसा हमने क्यों किया? सर A plus B is equal to B minus A क्यों करेंगे? What is this? ये LHL है? यस सर। What is this? This is RHL. अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि लिमिट इज इक्वल टू दिस. इट्स का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं? यस सर, करती है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? LHL इज इक्वल टू RHL जब होते हैं. तो हमने कहा LHL इज इक्वल टू RHL. एंड व्हाट इज द लिमिट, वैल्यू ऑफ द लिमिट? LHL और RHL, है ना? लिमिट की वैल्यू क्या होती है? LHL या RHL. अगर लिमिट Yes, एग्जिस्ट sir. करिए, बिकॉज बोथ आर इक्वल, सो दीज टू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट. Yes, sir. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस वन. ठीक है, आपको कैसे करना है? आपको ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 minus fx is equal to limit x tends to 1 plus fx, and this is equal to what? Limit x tends to 1 fx. ठीक है, सो ये कितना आ गया आपके पास? a plus b is equal to b minus a. और फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x tends to 1 fx is equal to f1. सो आप कह सकते हैं this okay, after this you can write like this is equal to 4. Okay Noma, this clear?
सर उसके बाद वैल्यूज कैसे आ रही है? मेरी तो a इज इक्वल टू 4 आ रहा है और b इज इक्वल टू 8 आ रहा है। नहीं, ये कैंसिल होगा ना ए। सो 2b इज इक्वल टू 4, सॉरी 2b is equal to 8, then b is equal to 2, sorry b is equal to 4. Now put this b is equal to 4 in any of the equation, you will get a is equal to 0. This clear? ओके सर। Noma, this point is clear? Yes, sir. Okay, very good. Please note down this and share your answer. बताइए, what is a and b? सर आपने यहाँ पे लिमिट्स को ऐड क्यों किया जब ये इक्वल है? हमने नहीं हमने ऐड नहीं किया। We have this one, a plus b is equal to b minus a is equal to 4. तो इसका मतलब ये है नोमा that a plus b is equal to 4 और ये भी 4 की इक्वल है, इट्स मीन b minus a is equal to 4. कह सकते हैं सर हम ये? इक्वेशन बना के सॉल्व करनी है। इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करेंगे। ओके सर। डन। Okay, Noma, what's the answer? So b is equal to 4 and a 0. Very good. Namra, you're also getting the same answer? यस सर। Okay, very good. Okay, so this was our last topic in the limits. Now the limits is complete. ठीक है, अब आपके डाउट्स डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स में मुझे बताइए इफ यू हैव एनी डाउट, अदरवाइज वी विल मूव टू देन नेक्स्ट चैप्टर. सर मैंने किया ही नहीं था, मतलब डेरिवेटिव लिमिट्स वाली एक्सरसाइज तो पहले ही कर ली थी और ये वाले क्वेश्चन हुए नहीं थे और डेरिवेटिव्स करना है हम लोगों को। मुझे फर्स्ट टर्म में नहीं करना है, ओके सेकंड टर्म में. सो अभी हम पहले तो कोई डाउट नहीं है। ओके. अच्छा, टेल मी वन थिंग कि आप सबके एग्जाम सब कब हैं? So 15 November. 15 November ऑफलाइन. ओके, एंड वर्ड्स कंप्लीट फर्स्ट टर्म है ना? Yes sir. ओके सो MCQ based होगा। ओके ओके ओके. सो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है. Yes sir. ठीक है. नम्रा, आपके एग्जाम्स कब से हैं? सर हमें अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ओके ओके ओके, नॉट इशू. सर स्पर्श, चैप्टर 10 और 9 में सर सारे क्वेश्चंस तो बहुत लंबे सब्जेक्टिव बेस्ड, तो फिर सर उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे होगी? उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे होगी? ऐसे कहते हैं, अब आपके टेस्ट रख देते हैं. ओके, तो मैंने पहले भी कहा था कि फॉर द सेम क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म हो सकते हैं, है ना? वी जस्ट नीड टू गिव यू द ऑप्शंस. सो ऐसे कहते हैं, अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं. ठीक. ओके सर टेस्ट आप क्लास में लोगे? क्लास सॉरी टेस्ट न्यूक्लियर सर ऑर्गेनाइज कर देंगे. ठीक है, एंड एमसीक्यू बेस्ड होगा. सो आपको पोर्टल पे जाके ही वहाँ टेस्ट देना होगा. तो पर पोर्टल तो वर्क नहीं करता, उस पर दिखाता है और सेशन इज एक्सपायर्ड। अच्छा, आपने बात की न्यूक्लियर सर से? क्योंकि और सब स्टूडेंट्स तो दे रहे हैं उसमें टेस्ट, उनका हो रहा है. सर मैं बात करूंगी आज। ठीक है ठीक है. ओके, सो हम डाउट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्लान कर लेंगे कि कौन से चैप्टर. की बात की अभी आपने। बच्चे, आपके जो भी टर्म 1 का सिलेबस है उसके चैप्टर्स के. ठीक है, तो हम डाउट क्लास रखेंगे. वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर डाउट्स, उसके बाद फिर पैरेलली टेस्ट भी होता रहेगा. ठीक. सो कल फिर आपको बताते हैं कि आपका कौन सा टेस्ट होगा. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब आपके डाउट्स डिस्कस करते हैं. ठीक है, प्लीज चेक कीजिए आप इफ यू हैव एनी डाउट्स इन सर लिमिट्स. क्वेश्चन 25। 25. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो लिमिट्स के होंगे लेकिन अभी कल पूछ लेंगे क्योंकि मतलब जो जितना किया है उसमें तो नहीं है ये Okay. एफएक्स आरएचएल एलएचएल किया नहीं था। ओके ओके, नॉट अ इशू. ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, उसमें भी आप बताइएगा इफ यू हैव एनी डाउट. Nirkush, which question? सर 25। 25th. Okay.
Okay, so Namra, Noma, Sparsh, there's a question. Always remember in inequality, you always need to find LHL and RHL. And whenever you have a mod, फिर mod में भी आपको LHL, RHL find करना है. So हमें क्या करना होगा? First of all, हम mod को define करते हैं. So Sparsh, can you tell me what is mod X? हम कर चुके हैं relation and functions में. Sir, X when X is X is positive. greater than equal to 0. And Yes, sir. और क्या And, होता है? minus X when X is less than 0. लेस देन 0. सो नोमा ये हम कर चुके हैं पहले रिलेशन फंक्शंस में डिस्कस किया था. यस सर. ओके नम्रा, x isn't equal to 0 लिखा है. इसका मतलब क्या होता है? मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ यू आर पुटिंग अ -1, फाइनल आंसर क्या होगा? 1. 1. सब पॉजिटिव हो जाता है. पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, बट पॉजिटिव में कैसे करते हैं, है ना? वी मस्ट हैव सम फॉर्मूला. सो फॉर्मूला क्या होगा? वी हैव दिस mod x. अगर आप पुट करें सपोज एक नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जांपल x-2, देन मॉड कहता है कि यूज माय वैल्यू दिस वन. अगर आप नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो यहाँ है व्हेन x इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव, देन आपको मॉड की वैल्यू यूज करनी है -x. सो व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो मॉड x क्या यूज करेंगे नंबर? 2. -x. Oh my, sorry. ओके, My. अब -x मींस नेगेटिव ऐसे ही रहेगा. इन प्लेस ऑफ x आपको ये वैल्यू पुट करना है, तो आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव. क्लियर हुआ कैसे मॉड कन्वर्ट करता है पॉजिटिव वैल्यू में? Yes sir. ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो इन दोनों में से हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? First one. फर्स्ट वन. सो वी विल टेक अ वैल्यू mod x इज इक्वल टू x, और जब ये 3 है तो हम डायरेक्टली 3 पुट कर देंगे. सो मॉड कैसे वर्क करता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, use x. When x is less than 0, use -x. This clear, Namra? Okay. ठीक है. So just note down this formula. अच्छा, अब हमें our actual question is this. Just please note down this, only this part, and confirm me. फिर हम check करते हैं this one. Namra, this done? Yes. Okay. Now next हमारे पास है fx is equal to, okay, this is mod x by x. अब इस mod को हम define करते हैं. So हम क्या करेंगे? We will take x is greater than equal to 0. ठीक है, x is less than 0. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? उसने x is equal to 0 के लिए इस फंक्शन की एक कंप्लीट वैल्यू गिवन है. in this question for x is equal to 0, this complete value is given. So हम यहाँ जो greater than equal to 0 लेते हैं, अब हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ x is equal to 0 के लिए उसने फंक्शन की वैल्यू दी है. अगर वो कोई भी वैल्यू देता है हम उसको नहीं ले सकते हैं. तो हमारे पास है mod x by x. So Namra, please tell me when x is greater than 0, mod x क्या होगा? Positive. x X. by ये डिनोमिनेटर में x है, so we get 1. When x is less than 0, what is mod x? -x. Minus x by x, this is equal to -1. For x is equal to 0, we have 0. ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. वी हैव दिस फॉर्मूला दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट अगर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे गिवन था दैट x इज इक्वल टू 0, ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो 0 है ना? उसने दिया है दैट x इज इक्वल टू 0, ये जो फंक्शन है वो 0 है. तो हम
इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन. गिवन नहीं होता देन दिस ओके हम लेते हैं. दिस क्लियर? नोमा, नम्रा, स्पर्श. सर ये -1 कैसे हो जाएगा? बच्चे मॉड लेस देन 0 के लिए मॉड x क्या पुट करेंगे हम? सर नेगेटिव. -x by x is equal to -1. चेक ओके करें. सर. x is equal to we have this one mod x by x. हम पुट करें x is equal to -2. तो हमने क्या पुट किया? -2 by -2. सो नंबर नोमा ये कितना आएगा आंसर? सर ये 2. 2 by 2 by -1 आंसर -1. ओके सर. Okay, number Noma Sparsh, this clear? यस सर. Yes, sir. Okay, now find the LHL and RHL. ठीक है, हमें चेक करना था ना लिमिट. क्वेश्चन क्या था हमारा एक्चुअल क्वेश्चन? अच्छा, हमें लिमिट कैलकुलेट करनी थी. सो फर्स्ट कैलकुलेट LHL, देन कैलकुलेट RHL, और फिर चेक कीजिए कि दिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. Please confirm me once this is done. So limit does not exist. Does not exist. Very good. Sparsh, LHL कितना आ रहा है? So -1. Very good. RHL? 1. 1. Very good. Limit does not exist. Namra and Noma, please confirm me once you complete it. Yes, sir. Limit does not exist. Does not exist. Very Sir. good. Okay, very good. Sparsh, what's the next doubt? Sir 26 है वो तो same तरह से होएगा ना? Same question. This is a 30. 30? Yes, sir. Sparsh, ये भी same नहीं है? Okay, इसको discuss करते हैं. 30 is if fx is equal to this is the question. For what value of a does this limit exist? Okay. ठीक है. So Namra and Noma, please try this question. उसके बाद I will help you. ठीक है, अगर आपको डाउट होता है. Noma and Namra, try किया आपने? कर रही हूँ. Yes, Okay. sir. Okay. If you have any doubt,
then please let me know. सर नहीं हो रहा. नहीं हो रहा? ओके, वी विल चेक. देखिए, ऑलवेज पहले इसको हम डिफाइन करते हैं. ओके, f(x) इज इक्वल टू नंबर. प्लीज टेल मी दिस. x इज लेस देन 0, ये कितना हो जाएगा? ओके, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं. माइनस x प्लस x इज लेस देन 0. इसके लिए तो 0 ही है. x इज ग्रेटर देन 0, ये कितना हो जाएगा? x minus 1. Okay, and always remember one thing. This point, this is for x is greater than 0. Always remember one thing. जिस point के लिए function में changes आते हैं, there is a possibility that the limit does not exist. जिस point के लिए function में changes आ जाता है, function change हो जाता है, वहाँ possibility ज़्यादा होती है कि हमारा limit exist नहीं करेगा. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम कह रहे हैं पॉसिबिलिटी हो जाती है. सो इफ on this complete number line, this is from minus infinite to plus infinite, okay, this is point 0, this is a complete number line. So at which point there is a possibility कि limit exist नहीं होगी? किस point पे possibility है? सर आप रिपीट कर देंगे? जी, मैंने कहा कि जिस पॉइंट के लिए फंक्शन में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे देखिए 0 के लिए ये है, लेस देन 0 के लिए ये है, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना? फंक्शन चेंज हो रहा है. लेस देन 0 के लिए ये लेंगे, ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे, 0 के लिए ये लेंगे. सो फॉर 0 फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो जिस पॉइंट के लिए फंक्शन में चेंजेस आते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लिमिट वहां एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. आई एम सेइंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. फॉर एग्जांपल, आई विल टेक योर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 के लिए हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? दिस वन, So third one. This. यस, it's है ना? -1. दिस वन. फंक्शन में कोई चेंज नहीं है. 0 के लिए चेंज है, लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी. ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है. उसने क्या कहा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज दिस लिमिट एग्जिस्ट? a की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट होगी? तो a हमें कहां से फाइंड करना है? कंप्लीट नंबर लाइन से, माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट. सो इस कंप्लीट नंबर लाइन में किस पॉइंट पे हमें डाउट है? स्पर्श So 0. 0. सो फर्स्ट थिंग इज, हम पहले 0 के लिए चेक करेंगे कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है. ओके, सो यू जस्ट डू वन थिंग, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इसको चेक कीजिए कि दिस एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है, एंड देन टेल मी द आंसर. तो मुझे समझ में नहीं आया. अभी नहीं है? ओके, नोमा नॉट इशू. आप नोमा पहले ये कैलकुलेट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है, आपको ओके उसके सर. लिए LHL फाइंड करना है, RHL फाइंड करना है. ठीक है, डू दिस, शेयर योर आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ.
So limit does not exist. Very good, Spush. Also find किया लें Spush. उसके बाद फिर I will explain you. Namra and Noma, please share your answer once you complete it. सर मेरा तो दोनों में 0 आ रहा है। दोनों में 0 क्यों आ रहे हैं और Noma? सर हम fx ही रखेंगे ना -x+1। LHL के लिए हम ये पुट करेंगे, यहाँ चेक करें ना, for LHL ये पुट करेंगे, RHL ये पुट करेंगे, तो LHL के लिए 1 आना चाहिए, सॉरी LHL के लिए 1 आना चाहिए, RHL के लिए -1 आना चाहिए। चेक कीजिए प्लीज। ओके सर। डन। ओके वेरी गुड। नोमा LHL कितना आ रहा है आपका? सर 1 और सर RHL -1। Very good. So limit does not exist. Okay, limit extends to 0 fx does not exist. Namra, same answer आ रहा है? Yes, sir. Okay, so we will say that limit extends to 0 does not exist. ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे LHL is not equal to RHL, hence limit extends to 0 fx does not exist. Please check the question. Question में उसने क्या कहा था? For what values of a does this limit exist? For what values of a does this limit exist? A हमें कहाँ से चूज करना है? कंप्लीट नंबर लाइन से, है ना, कंप्लीट रियल नंबर से, -∞ to infinite. तो किस पॉइंट के लिए नंबर एंड नोमा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे? 0 के लिए। ओके, तो हमें एक ए जो चूज करना है उसमें 0 नहीं आएगा, एक्सेप्ट 0 अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करते हैं। ठीक, सो वी विल राइट दिस does not exist and clearly limit x tends to a fx exist for all x not equal to, sorry, exist for a, this is a, for a not equal to 0. ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये चेक करते हैं। limit x tends to a fx exist for all a not equal to 0. ये हमने चेक कर लिया कि 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बट रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हम कैसे चेक करेंगे? सो फॉर एग्जांपल इफ वी नीड टू चेक फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर हमें 1 के लिए चूज करना है देन नोमा इसमें से हम 1 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? तो x greater than 0। ग्रेटर दैन 0 है ना, सो हम चूज करेंगे दिस वन, mod x -1. सो फॉर x इज इक्वल टू 1, इसके लिए अगर हम LHL फाइंड कर रहे हैं देन ऑल्सो वी हैव द सेम फंक्शन। अगर हम RHL फाइंड कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास सेम फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपसे मैं हमेशा क्या कहे, LHL जैसे 1 माइनस हम फाइंड कर रहे हैं, तो 1 माइनस का मतलब ये नहीं होता कि 1 से बहुत ज्यादा कम है वैल्यू। 1 माइनस का मतलब कभी भी ये नहीं होगा दैट वी आर टेकिंग -2 -3, close to 1 but less than 1. So this means very close to 1, 0.9999 and so on. ठीक है, so LHL या फिर RHL का मतलब close to 1 greater than 1, then this means 1 point, suppose 1 point like this. So LHL और RHL फाइंड करने के लिए x is equal to 1 we have only this function. So LHL की वैल्यू भी सेम आएगी, RHL की वैल्यू भी सेम आएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? नम्रा एंड नोमा, स्पर्श? Yes, sir. सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ओके। सो हमने इस कंप्लीट नंबर लाइन में चेक किया कि फॉर 0 तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है 1 के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देन फ्रॉम दिस फंक्शन x इज इक्वल टू 1 के लिए नंबर हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? x is greater than 0. Greater than 0. Okay, we will take this function mod x -1. But one thing is, अब ये फंक्शन सेम रहेगा, LHL फाइंड करने के लिए भी हम सेम फंक्शन चूज करेंगे, RHL के लिए भी करेंगे। हमारी लिमिट डिफरेंट क्यों आ रही थी? LHL RHL में डिफरेंट क्यों आ रही थी? क्योंकि हमारी वैल्यूज डिफरेंट थी। LHL के लिए हमने ये लिया, RHL के लिए ये लिया, इसलिए पॉसिबिलिटी हो गई थी कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है।
बट जब हम फंक्शन ही सेम चूज कर रहे हैं, LHL के लिए भी हम सेम चूज कर रहे हैं, RHL के लिए भी हम फंक्शन सेम चूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी वैल्यूज भी सेम आएंगी. ओके. सिमिलरली सपोज वी विल टेक x इज इक्वल टू -2, देन अमरा प्लीज टेल मी हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? x is lesser than 0. लेस देन 0. वेरी गुड. सो वी विल टेक mod x plus 1. अब -2 के LHL के लिए भी सेम फंक्शन है, RHL के लिए भी सेम फंक्शन है, सो वैल्यू भी सेम ही आएगी. वैल्यू डिफरेंट क्यों आती है? क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया. जैसे 0 के लिए देखते हैं, LHL के लिए ये है, RHL के लिए ये है. फंक्शन चेंज हो गया, इसलिए पॉसिबिलिटी हो गई कि अब वैल्यूज मैच नहीं करेगी, अब वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. बट अगर सपोज LHL RHL दोनों के लिए सेम फंक्शन है, देन यू विल गेट द सेम वैल्यू. नम्रा, नोमा, स्पर्श, ये क्लियर यस हुआ? सर, आ गया समझ में। यस सर। ठीक है. सो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, 0 के लिए क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? क्योंकि 0 के लिए फंक्शन में चेंजेस आ गए थे. रिमेनिंग पॉइंट्स पे क्या होगा, फंक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे. अगर सपोज हम 1 चूज कर रहे हैं तो हमारा सेम फंक्शन है, वी आर टेकिंग -1, वी हैव अ सेम फंक्शन, तो इसलिए वहां लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लिमिट एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी कहाँ हो जाती है? जहां फंक्शन में चेंजेस आ जाते हैं. तो जिस पॉइंट के लिए चेंजेस आ रहे हैं वहां तो हमेशा डाउट रहता है कि यहाँ हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, इसलिए हमने इसको फाइंड किया था x टेंड्स टू 0, ये हमने फाइंड किया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अब हम क्या करें, क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0. तो लिमिट किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? सारी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट दिस 0. नोमा, नंबर, स्पर्श, इतना क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। और सर यहाँ पे हम वैल्यूज डायरेक्टली भी तो रख सकते थे ना? कौन सी वैल्यूज? सर 0 + 1 सब मॉड में। फिर उससे क्या होता है? लेकिन सर बच्चे, वैल्यूज तो सर सेम ही आती ना? हाँ बच्चे, लेकिन ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना हमारे पास, हम सारे पॉइंट्स तो चेक नहीं कर सकते, ओके सर। है ना. 0 इज अ सिंगल पॉइंट, इसलिए हमने चेक कर लिया. रिमेनिंग 0 कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट. तो वो तो हम 1 बाय 1 सबको चेक नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. ओके सर, तो ओके. फिर सर इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा x 0 लेंगे, x टेंडिंग टू 0? जहाँ फंक्शन में चेंज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल you have this function f(x) is equal to suppose x plus 1, x is less than 1, x plus 2, x is greater than 1. ठीक है. अब नोमा पॉसिबिलिटी क्या है कंप्लीट नंबर लाइन में? कहाँ पॉसिबिलिटी है, किस पॉइंट के लिए फंक्शन, किस पॉइंट के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? सर x टेंड्स टू क्या है? बस अभी मैंने आपको सिर्फ ये दिया, फंक्शन इज दिस. अब आप मुझे बताइए कंप्लीट नंबर लाइन में आपको क्या लग रहा है विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन कि किस पॉइंट के लिए डाउट है हमें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है? कौन सा सर पॉइंट है वो? 1। 1 है. 1 बिकॉज 1 के लिए चेंजेस आ गए. लेस देन 1 के लिए ये लेना है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये लेना है. तो जब आप LHL लेंगे, ये लेंगे, RHL लेंगे, देन ये लेंगे, फंक्शन चेंज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ. ओके सर। ठीक है. ओके और 0 के लिए नहीं होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0. ओके. सो x इज इक्वल टू 0 के लिए नोमा कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? x is equal to 0. x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कौन से चूज करेंगे इन दोनों में से? x सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन, है ना, क्योंकि ये क्या है, x इज लेस देन 1. लेस देन का मतलब 0 तो यही आएगा, इसमें तो 0 नहीं आएगा, है ना. सो वी हैव दिस x plus 1. अब आप LHL RHL जब फाइंड करेंगे यू विल टेक द सेम वैल्यू. सेम क्यों लेंगे? क्योंकि LHL RHL का मतलब होता है क्लोज टू 0. इसका मतलब ये नहीं है बहुत बड़ा डिफरेंस है, वेरी वेरी क्लोज टू 0. तो 0 माइनस का मतलब क्या होता है? 0 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे 0.0 आपका जो भी पॉइंट है विच इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 एंड लेस देन 0. और 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1 बट वेरी वेरी क्लोज टू 0. इसीलिए LHL RHL के लिए सेम फंक्शन रहेगा x plus 1 फॉर 0. 1 के लिए यहाँ पॉसिबिलिटी है क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. दिस क्लियर? ओके सर। Okay, sir. स्पर्श? ओके, Yes, sir, अब तो ये हो जाएगा. ओके, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी अदर डाउट इन दिस चैप्टर. सर ये वाला क्वेश्चन बस इतना ही करना है? हाँ, बस इतना ही करना है. 0 के लिए शो कर देना है दैट डज नॉट एग्जिस्ट. उसके बाद बस ये लिख देना है क्लियरली लिमिट एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0. ओके. यस।
प्लीज प्रोफेसर आपने जो एग्जांपल दिया अगर उसमें होता ग्रेटर देन और लेस देन 2 तो फिर सर हम 2 लेते। फिर हम 2 लेते हैं क्योंकि 2 के लिए फंक्शन में चेंज हो गया, सो 2 के लिए पॉसिबिलिटी है दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सर। ओके प्लीज शेयर योर नेक्स्ट डाउट। सर इस चैप्टर में तो नहीं थे। इसमें तो इतने ही थे मुझे था लिमिट्स तो में। मुझे बस जी सर। मुझे बताइए। और सर 13 और 17 में बस सर मुझे लग रहा था कि मैंने मेथड गलत किया है। बट आई गेस हम तो कर चुके हैं 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन मैंने दूसरे मेथड से किया है। ओके बताइए 17 आपने कैसे किया है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। लिमिट एक्सटेंड्स टू सर 0। आंसर तो आ गया बट सर मुझे अपना मेथड गलत लग रहा है। बताइए कैसे किया आपने। और सर मैंने इसको ले लिया -2 एक्स स्क्वायर, नहीं माइन सर -2 साइन स्क्वायर एक्स। okay, so we have this formula 1 minus cos 2x which is 2 sin square x. So this will give you -2 sin square x. Okay. अपॉन -2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आंसर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स न्यूमरेटर में। इसको ऐसे कहते हैं ना sin x by 2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यस क्या सर। किया आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद x। जी सर। सर न्यूमरेटर में, आंसर डिनोमिनेटर में सर 2x, नहीं सर सिर्फ x से किया। सो यहाँ x by 2 है, यहाँ भी x by 2 से नहीं करें, मतलब दैट्स योर चॉइस। यस सर। x से करेंगे फिर आंसर तो नहीं आएगा, x by 2 चाहिए हमें। ओके सर, एक मिनट सर। ओके सर, हो गया सर। हो गया ओके। और किस में डाउट है। और सर 13th में। ओके सर अभी केमिस्ट्री के SM 15 से मैं लीव कर दूं। जी बच्चे अच्छा जस्ट वांट टू डिस्कस वन पॉइंट। अभी आपके डाउट्स आई गेस ज्यादा हैं तो कल आप किस टाइम क्लास करेंगे 5:30 और 6। 5:30 कर लेंगे सर। 5:30। 5:30 है ना, ताकि हमें 2 आवर्स मिल जाए फिर। ठीक है टुमारो। कस्टम का सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना। जी बच्चे हमने कर लिया, बस सेट्स रह गया है। ठीक है सेट्स आप लोगों को आता है, वी विल डू, बट सेट्स भी हम करेंगे। ठीक है उसको सर लास्ट में सेट करेंगे। पे मुझे मिसलेनियस में डाउट था सर। ओके ओके ठीक है बच्चे उसको हम करते हैं सेट्स को। ठीक है बट पहले हम सारे डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं फिर सेट्स करते हैं। ओके सर। ठीक सर है मेरी भी क्लास है अब आपकी भी केमिस्ट्री क्लास। की। ओके ओके नॉट इशू। ठीक है आप दोनों ड्रॉप कर सकते हैं स्पर्श के जब तक हम डाउट्स डिस्कस करते हैं। सर थैंक यू हमें सर। ये बस यही चैप्टर कंप्लीट करना है। जी बच्चे नहीं नहीं सब करना है, जितना भी हम कर चुके हैं डू ऑल द क्वेश्चंस। कल 5:30 उसके हम डाउट्स डिस्कस करते हैं फिर। सर चैप्टर 9 मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए। कोई बात नहीं ट्राई कीजिए, जितने भी डाउट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे और आई विल गिव यू द हिंट। ओके सर। आंसर मुझे स्टैट्स पे सर उसके फॉर्मूले में डाउट था। सर मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है सर वेरिएंस में। ओके फिर कल हम डिस्कस करते हैं वो भी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। ओके वेलकम। जी स्पर्श बताइए क्या डाउट्स हैं। स्पर्श यस सर। जी बताइए व्हाट आर योर डाउट्स। सर मैंने अभी ऐसे कोई डाउट्स देखे नहीं थे। अच्छा अभी ऐसे डाउट्स नहीं देखे। ठीक है तो स्पर्श ये एग्जाम्स हो गए, नेक्स्ट इज 25 नवंबर है ना स्पर्श। यस सर। सर मेरे अभी एग्जाम की डेट नहीं बताई। ओके ओके ठीक है स्पर्श कोई बात नहीं हम सर बस ये बताया कि नवंबर में होंगे एग्जाम, मिड मिड सेम ऑफ। सिलेबस। ओके ओके ठीक है फिर 15 एंड 20 के आसपास ही होनी चाहिए। अब सिलेबस तो हमारा हो गया ऑलमोस्ट, बस सेट्स हम एक बार कर लेंगे, आपको आता भी है बट वी विल अगेन डू दैट। और डाउट्स कल डिस्कस करते हैं 5:30 से। ओके सर कल मैं कुछ डाउट्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे कल सुबह कहीं जाना है, तो इसलिए कल मैं शाम तक ही आऊँगा 5 o'clock तक। ठीक है तो इस पे ऐसे कीजिए क्लास प्लीज ज्वाइन कीजिएगा और स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं नॉर्मली वो भी आपके भी वैसे ही होंगे है ना, तो यस वो फिर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। यस। ओके ठीक ठीक है स्पेश